Just a minute. Okay. The variable that are defined inside a function is called as a local variable, and the variable that is defined outside of the function is called as a local variable. So variable is having a two scope. One is local scope, another is global scope. Local scope means the variable which is defined inside a function is called as the local variable. The variable that is defined outside of a function is called as the global variable. Clear? Bujara, Harsha, Amit, Sumesh, Priyadarshini. हाँ सर। Okay. So if you see this, Yes, sir. okay, if you see this program, in this program we define total equals to 0. So total equals to 0, and here we define a function, sum argument 1 and argument 2. Okay, so here we define a function, then we're calling a function. So here we calling a function and we are passing a value 10 and 20. Okay, we pass the value 10 and 20. The 10 and 20 is stored in the function. Now it is retrieved and it is stored in a total. It is added all the number and show the result. Inside the function the result is what, and outside of inside the function the result is 30, but in the outside of the function, and which one is the global variable, it is not reflected. So it is showing you here 0. The global total is 0 and the function that is present in the local variable is 30. Okay, so I show this program. You can see there, inside a function the value is 30 in this one, but outside a function what is changes inside the function, it is not reflected. So the default value that is 0 is initialized, that we define here. The total value is 0, so that value is initialized here. But when we pass the 10 and 20, the 10 and 20 is stored here, then it is added a number and it shows the result. Okay, clear? Harsha? Yes sir. Okay. Yes, sir. Then next is inheritance. So as we discussed in the object orientation concept, inheritance is what? Now it is inherit the set of attribute and related behavior from the parent class. So here we have the two type of class. One is child class, another is parent class. The child class retrieve all the functionality of the parent class,
and it gives the new functionality on it. माने चाइल्ड क्लास कौन करिवो पेरेंट क्लास रो सब फंक्शनैलिटी को रिट्राइव करिवो बा यूज करिवो as well as से निजर किछि फंक्शनैलिटी दबो तो सेटा को कहिबा हमें इनहेरिटेंस. So in inheritance, how we have to define, like if you see that syntax, class A and class B, class C. So three classes we are defining: class A, class B, class C, A comma B. Means here C is the child class which is inherited from A and B. C is a child class which is inherited from A and B. So here C is a child class and here A and B is called as the parent class. So now I define here Python. देखो क्लास एनिमल गोटे रहिला definition speak dog animal it is bark. Now see that dog is inherited from animal means dog टा animal ठारू inherit हेची माने dog टा होची child class animal टा होची parent class. तो एठी देखो आमे कहार ऑब्जेक्ट बनेले आमे चाइल्ड क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले d इक्वल्स टू डॉग सो d इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग क्लास. तो एई ऑब्जेक्ट d ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु दीटा फंक्शन बार्क फंक्शन को कॉल करले स्पीक फंक्शन को कॉल करले. The dog is barking and animal is barking. This one. So here dog is the child class, animal is the parent class. So here we retrieve, here we inherit. Mati inherit kale. So here animal is the parent. Okay, it is animal ta parent class. The bracket bhitar rahila. That means ame child class object through रे आमे parent class रो functionality को भी call करी परिबा. एठी मु child class रो object बनेली d से object through मु bark function को call करी परिबी plus speak function को भी call करी परिबी. बुझला? प्रियदर्शिनी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ सर. Yes, sir.
ये देखो एठी हमें डिफाइन करा हला क्लास पेरेंट, तो पेरेंट रो एटा हला कंस्ट्रक्टर, तापर पेरेंट रो गोटे प्रिंट मेसेज रहिला, एटा गोटे होची फंक्शन, तापर हमर रहिला नेक्स्ट क्लास चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट, तो चाइल्ड क्लास रे एठी पेरेंट रहिला, एठी भी गोटे कंस्ट्रक्टर रहिला, तो एठी देखो हम गोटे सुपर मेथड यूज करिचे, दिस सुपर मेथड इज यूज टू कॉलिंग द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर टाको कॉल करिया पई मोटे सुपर मेथड यूज करले। So this is the function here I am using for calling the parent class constructor, तो ये जो super init text यूज करले एटा होची parent class constructor कॉल हबो, तो parent class constructor केम कॉल हबो ना जते बेले मो child class रो ऑब्जेक्ट बनेबी से समय ऑटोमेटिक parent class constructor ठीक कॉल हेगला। Unexpected indentation, ओके। तो हेलो एंड वेलकम, तो ये मु क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली, चाइल्ड क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली, जब मु चाइल्ड क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाउची ऑटोमेटिक से कॉल कोडा कॉल हबो ना पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हबो, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर ए जो वैल्यूटा अछि एटा टेक्स्ट एटी स्टोर हला, तबे ऑटोमेटिक ये कोन करिवो ना सुपर जो कीवर्ड अछि ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करिवो, माने ए जो मेसेजटा अछि एटा एठी स्टोर हला, एठू आसे कि ए जो मेसेज वेरिएबल स्टोर हला, जेतेबेले मो प्रिंट मेसेज फंक्शन टा को कॉल करिवि तो सेल्फ डॉट मेसेज आमे जेते शो करिवा सेटा हेउची हेलो एंड वेलकम एटा शो करिवो, बुझि पाइलो? सोमेश, प्रियदर्शिनी, अमित, सर जो प्रिंट मेसेज दिलाटा बुझ पाइले ना प्रिंट एटा प्रिंट सर मेसेज आईएनआईटी टा कोन आईएनआईटी टा होची कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास, आमे जेंति कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कांसेप्ट जो जावा रे जो रहउतला आमे क्लास ना जहा रहउतला कंस्ट्रक्टर ना शेयर होतला, किंतु पाइथन रे कोन यूज करा होची आईएनआईटी यूज करा जाउची, बुझिला? हां सर से जो प्रिंट मेसेज देतला काहे देतला बुझ पाइले काहे की रो किछि नाही, माने एटा होची आमे डिफाइन करथिले, माने काहे की कहले तो आमे एग्जांपल ला देखिया पे एटा फंक्शन टा को कॉल कराला, एटा कथा कहउछो तो आज्ञा सर एटा फंक्शन टा को कॉल करा हला पर एटा आमे चाइल्ड क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले, ए ऑब्जेक्ट थ्रू रे आमे कोन कले ना प्रिंट मेसेज फंक्शन टा को कॉल कले, प्रिंट मेसेज फंक्शन कोठी अछि पेरेंट क्लास रे अछि, किंतु जेहेतु चाइल्ड क्लास ता पेरेंट क्लास रो रिट्राइव होउची तेनो एटा रहला कोन ना से जो प्रिंट मेसेज मेथड यूज कले हमर कॉल हे जे
एटी कॉल करा हला फंक्शन टाको सर सेटा लिखा था सेल्फ डॉट मेसेज सेटा कोथिरो एटा जेते बेले क्लास रे हमें फंक्शन टा यूज करिवा फंक्शन नो जो पैरामीटर टा अछि सेटा ब्लैंक रुहेनी सेटा सेल्फ लिखा जाए सेल्फ लिखा ले कोन हबो ना सेल्फ रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ क्लास क्लास रा मेंबर को रेफर करिया हाँ पे सर सेटा हाँ सर एटा बुझले एटा बुझले सर लिखा है सर जो पेरेंट क्लास उटा सेल्फ डॉट मेसेज इज इक्वल टू टेस्ट सेल्फ डॉट मेसेज एटा कोन किन लिखा एटा बुझि पलेनी डॉट सेल्फ डॉट मेसेज को मेथड लिखा एटा सेल्फ हैला गोटे आइडेंटिफायर क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कांसेप्ट रे कोन हुए मेंबर्स मानो को कॉल करबा को हेले हमें डॉट सिंबल यूज करू हैला तुमरो जावा रो नॉलेज अछि जावा टी पढतिलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कांसेप्ट लाइक C++ जावा किसी नॉलेज अछि सर सी प्लस प्लस नॉलेज अछि जावा सर स्टार्टिंग हेलाडू बंद हो गला हां तो एई जो सर खाली जस्ट खाली एंदी जो मान जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करिया क्लास क्रिएट करिया एतीटे जस्ट सिखितली हाँ से जो ऑब्जेक्ट बना हुई ऑब्जेक्ट थ्रू रे ही क्लास रो मेंबर्स मानो को कॉल करा जाए बुझी होची तो एटा होची गोटे कोन ना इट इज ए ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ थिंग माने क्लास रो मेंबर को रिप्रेजेंट करिया पई सेल्फ कीवर्ड यूज करा जाए तो सेल्फ सेल्फ डॉट मैसेज बुझी होची बुझ पाइलो सर डॉट मेथड टा यूज सर मेसेज टा काहे लिखा मेसेज अगर आगु लिख पारी हमें की ना हेटा लिखिया बाध्य हाँ तमे जहा ना जहाँ हमें लिख जे कोनो से नेम जहाँ भी नहीं लिख पारी अच्छा टाइम अच्छा नहीं बुझी पाइलो कोन कटि गला हेलो अच्छा बुझी पाइले समस्ते वीडियो टिके आसुनी हाँ सर तापर नेक्स्ट होची ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग मेथड माने हमें गोटे फंक्शन हमें डिफाइन करथिबा कोठी चाइल्ड क्लास रे गोटे फंक्शन हमें डिफाइन करिवा सेही फंक्शन टा जदी हमें पेरेंट क्लास रे यूज करिवा ताको कुआ जो ओवरराइडिंग मेथड बुझियला माने पेरेंट क्लास रे से फंक्शन टा डिफाइन होबो आ सेम फंक्शन टा जदी हमें चाइल्ड क्लास रे यूज करिवा ताको हमें कहबा ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग रे हमें जो पेरेंट क्लास रो फंक्शनैलिटी टा को हमें चेंज करिवा बुझियला हेलो मोटे के वीडियो आसुनी नेट स्लो अछि अरे रिप्लाई करो तो लिखो व्हाट इज ओवरराइडिंग overriding means the parent class function is redefined the parent class function is redefined
in the child class, with the same name but having different functionality. देख लो हाँ Yes, sir. এটা বুঝিয়ে দেবে।